नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का न्यूज़ एट 10 में। लोकसभा में आज फिर दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा प्रस्तावित। कल हंगामे के कारण शुरू हुई थी चर्चा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन समेत फार्मेसी संशोधन विधेयक भी होगा पेश। राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध। बिहार के एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के एनडीए सांसदों से भी करेंगे लोकसभा चुनाव पर चर्चा। ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वे को लेकर आज 2 बजे के बाद आ सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। 27 जुलाई को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित। हरियाणा के नूंह में कर्फ्यू। हिंसा प्रभावित इलाकों में 5 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। मध्य प्रदेश के उमरिया, कटनी, डिंडोरी और जबलपुर में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। झारखंड और ओडिशा में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की चेतावनी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में पेशी आज। आरोपों को खारिज करते हुए ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। भारत की मेजबानी में आज से शुरू होगी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया और जापान के बीच होगा ओपनिंग मैच। टेस्ट और वनडे के बाद अब वेस्ट इंडीज में T20 का किला फतेह करने के लिए बेताब टीम इंडिया। 5 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला त्रिनिदाद में आज। तो स्टडी पोर्टल जो है उसके लॉन्च पर इस वक्त विदेश मंत्री जयशंकर इस कार्यक्रम में अपना संबोधन दे रहे हैं। आइए सीधा सुनते हैं। But also today from oil imports that are taking place from Brazil, Mexico, Colombia and Guyana, and the fact that we are today importing crude oil and POL, petroleum oil and lubricants worth $7 billion from Latin America. This was the figure for the last year. And that we are exporting actually a similar amount in terms of refined products. I think this is something which is definitely worth noting. If you look at the automobile sector, the car exports to Latin America actually today constitute 1/3 of India's global car exports. And Mexico is actually the second largest market for Indian cars. Other major markets are Chile, Peru, Colombia, Ecuador, Panama and Guatemala. Motorcycle exports also constitute 1/3 of India's global exports. And Colombia here is number 1 as a market for our motorcycles, for our two-wheelers. But again, I must acknowledge Mexico, Guatemala and Peru as other significant markets. Latin America's capabilities in producing and supplying raw materials also gives it a very special edge when it comes to trade. The region is a big source of gold, copper and other mineral concentrates and also for wood. India's gold import from the region last year stood at in excess of $6.5 billion. And these were mainly from Bolivia, Peru, Brazil, Colombia, Dominican Republic, Argentina, Mexico and Ecuador.
Chile was the main supplier of copper, and this too was in excess of $1 billion, followed by Peru, Panama, and Brazil. We've had countries like Uruguay, Ecuador, Brazil, Argentina, Panama, and Costa Rica who have emerged as significant suppliers of wood and wood products. So let me now move on to the field of health. And, as a country which is asserting its capability as the pharmacy of the world, it's natural that we would have supplied COVID vaccines to we did to nearly 100 countries, medicines to 150 countries, and many of them were actually in the Latin America and Caribbean region. In fact, I think the vaccine supply to Latin America and Caribbean was roughly about 9 million doses to 21 countries of the region. But more than the supply, for us, it is a matter of great pride that we were the first suppliers of COVID vaccines to many of our LAC partners, even though supplies were available close by. We are now espousing. आप सुन रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर को, जो कि 9वीं CII इंडिया LAC कॉन्क्लेव में फर्दरिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर शेयर्ड एंड सस्टेन्ड ग्रोथ, यानी कि किस तरह से अपने जो आर्थिक सशक्तिकरण को हम मजबूती दे सकते हैं जब हम बात करते हैं सतत विकास को लेकर आपसी देशों की। और इसका जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कैसे भारत ने 100 देशों से ज़्यादा जो देश है उन्हें कोविड वैक्सीन प्रदान की। भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है और कैसे भारत हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में बिलीव करता है। असल में एक और कार्यक्रम है इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जहां पर जो तमाम स्टूडेंट्स इंडिया में आकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा 11 बजे, उसमें भी वो अपना संबोधन देंगे। उस पर भी रहेगी हमारी नज़र। लेकिन अब बात कर लेते हैं संसद के मौजूदा सत्र को लेकर, जहाँ हंगामे के बीच कई जो अहम विधेयक हैं वो सरकार की ओर से पारित कराए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली सेवा बिल की चर्चा ज़्यादा है, जिसे पेश तो 2 दिन पहले कर दिया गया था, लेकिन उस पर चर्चा अभी शुरू नहीं हो पाई है। बुधवार को इस पर चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो पाया। और एक और बड़ी खबर पर आपको ले चलते हैं। ज्ञानवापी पर आज फैसला आना है, उस पर उनके वकील इस वक्त बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला। तो हाई कोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाई हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। अगर वो जाएंगे तो जाएंगे, तो हम भी रहेंगे और ये जो सप्लीमेंट्री हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उसमें मोहर लगा। क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि ऐसा क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो।
शुरू से आप लगे हुए हैं, कैसे देखते हैं अब इसके उसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है, सच या झूठ जो भी है, वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। थैंक यू। मेरे साथ आप सुन रहे थे विष्णु जैन को, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। जब हम ज्ञानवापी के इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, और बहुत बड़ी खबर ये है कि ज्ञानवापी में अब एएसआई सर्वे का जो काम है वो फौरन शुरू होगा। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया है कि एएसआई का जो सर्वे है उससे किसी को भी नुकसान नहीं है, इसलिए सर्वे जारी रहेगा। जो मूल संरचना है, जिस तकनीक से एएसआई सर्वे करने वाली है, उस मूल संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे है उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। उसने मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उससे खारिज कर दिया, और ज्ञानवापी में अभी एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। मान सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका है, और खुदाई करनी होगी तो कोर्ट की इजाजत लेंगे, ये एएसआई का कहना है। और साफ तौर पर जिस तरह से जो जिला अदालत का फैसला था वो अब बरकरार रहेगा, यानी एएसआई अपना काम कर पाएगी। और एएसआई ने साफ तौर पर कहा कि सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं, जिसको माना है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और हरी झंडी दिखाई है, और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम सुन रहे थे विष्णु शंकर जैन को, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं। उनका मानना है कि हाईकोर्ट ने यह कहा है कि एएसआई का जो सर्वे है उससे नुकसान नहीं होगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रामेंद्र जुड़े हैं। रामेंद्र, हम मान सकते हैं मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, और साथ ही साथ जिस तरह से कोर्ट ने भी अब इस बात पर मोहर लगाई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि एएसआई सर्वे से जो मूल संरचना है, जिस तकनीक से वो किया जाएगा, उससे नुकसान नहीं होगा, इसलिए सर्वे जारी रहना चाहिए। बिल्कुल आंचल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों पक्षों को सुना। उन्होंने हिंदू पक्ष की याचिका को सुना कि क्या आप चाहते हो, मुस्लिम पक्ष से सुना कि क्या आप चाहते हो। मुस्लिम पक्ष जो तर्क लेकर आया तो उसने कहा था कि ज्ञानवापी अगर एएसआई सर्वे होगा तो उसमें नुकसान हो सकता है, उसको क्षति पहुंच सकती। उन्होंने एएसआई से अपना एफिडेविट लिया कि क्या नुकसान हो सकता है। एएसआई ने कहा कि इसमें कोई खरोच तक नहीं आएगी, हमारा जो सर्वे का तरीका है वैज्ञानिक आधार है, इससे ज्ञानवापी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने जो सरकारी वकील है सरकार के पद से, उनसे भी पूछा, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर सर्वे होता है तो कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की, वो हम पूरा करेंगे। तो जाहिर है एक बड़ा फैसला है, और जो बार बार वर्शिप एक्ट के तहत इंतजामिया कमेटी कहती थी कि सुनने लायक नहीं है, तो हाईकोर्ट ने यह भी रास्ता साफ कर दिया कि जिला अदालत का जो निर्णय है और जिला अदालत ने जिस तरह सुना इस मामले में, वो दोनों चीजें की जा सकती हैं। यानी ये मामला अब आगे बढ़ चुका है, और अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उम्मीद है कि कोई न कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर भी जिला अदालत का निर्णय आज के समय में प्रभावी और एएसआई अपना सर्वे कर सकता है। ये एक बड़ा फैसला है। आंचल, रामेंद्र, जिस तरह से अभी जो जिला कोर्ट ने फैसला लिया था, जिसको तुरंत बहाल करने की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह रहा है, इसका क्या मायना निकाला जाए? क्योंकि जैसे आपने कहा कि विकल्प तो अभी भी मुस्लिम पक्ष के पास खुला है, लेकिन जो ताज़ा स्थिति है उस लिहाज से कितना अहम है आज के इस पूरे, अगर हम घटनाक्रम को देखें उस लिहाज से फैसला, क्योंकि कई धार्मिक भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं और साफ तौर पर वैज्ञानिक प्रमाण भी है अब तो। देखिए आंचल, कानून व्यवस्था जो न्याय की व्यवस्था है अपने यहाँ, वो हमेशा सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इसको किस तरह टैकल करेगा? क्या हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको रद्द करेगा, या हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको कंटिन्यू करेगा? तो ये संभावनाएं अभी सुप्रीम कोर्ट तक बनी है। न्यायालय जाना अपनी बात है, लेकिन न्यायालय क्या निर्णय करेगा, किन तर्कों को सुनेगा, किन पक्षों को सुनेगा, कौन सा आधार न्यायालय अपने महत्वपूर्ण निर्णय में लेगा, ये न्यायालय का पक्ष है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिला अदालत का जो निर्णय अभी बहाल हुआ वो एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष की मानी जा सकती है। और इंतजामिया कमेटी का ये बड़ा झटका है कि जो जिला न्यायालय अदालत का निर्णय है वो कंटिन्यू हो गया, तो एएसआई अपना सर्वे करना शुरू कर सकता है। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो उसके अधीन होगा, खुदाई का अगर करेगा तो कोर्ट के अधीन होगा। ये सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहती थी रामेंद्र, लेकिन काम चलता रहेगा। जी, जिस तरह से एएसआई ये कह रही है कि अभी तो सर्वेक्षण किया जा रहा है, लेकिन अगर खुदाई की जाएगी तो कोर्ट से इजाजत लेनी होगी, तो इसके कानूनी प्रारूप क्या रहेंगे, और खास तौर पर कौन सी वो सबसे अहम दलील रही जिसको सिरे से खारिज किया गया है
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष ने जो दलील अपनी याचिका में दी थी। देखो, दो उनके महत्वपूर्ण पक्ष थे। वर्शिप एक्ट के तहत वो कह रहे थे 1991 में जो वर्शिप एक्ट है उसके अधीन कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए जिला अदालत को। एक तो वो खारिज हुआ हाई कोर्ट के निर्णय से। दूसरा जो बार बार कह रहे थे कि हमारे ज्ञानवापी को क्षति पहुंच सकती है, तो वो भी खारिज किया कि चूंकि एसआई ने जो अपना एफिडेविट दिया उसमें उन्होंने कहा कि इसको खरोच तक नहीं लगेगी। और तीसरी बात एसआई ने कहा कि वो सारा चूंकि मामला कानून और न्यायालय के अधीन है, तो अगर खुदाई की जरूरत तब पड़ेगी जो वैज्ञानिक सर्वे आएंगे, जो वैज्ञानिक सर्वे में उनको निशान मिलेंगे, कोई खुदाई की आवश्यकता होगी तभी खुदाई की जरूरत पड़ेगी, ऐसे खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे अभी वैज्ञानिक आधार पर उसकी मैपिंग की जाएगी, तमाम और चीजें हैं जो वैज्ञानिक आधार पर सर्वे किया जाएगा। तो खुदाई की अगर जरूरत पड़ती है तो न्यायालय ऐसा ही फिर आएगा कि साहब हमको ये अनुमति दी जाए, हम इस जगह पर कुछ खुदाई के अवशेष हैं वो मिल सकते हैं, तो वो अलग से अनुमति लेगी एसआई, और उसमें बाकी जो पक्ष है पार्टी वो भी न्यायालय में आके खड़े होंगे। तो जाहिर है कि ये है सब कुछ न्यायालय के अधीन, लेकिन काम चलता रहेगा। क्या सच्चाई है वो निकल कर सामने आएगी। एक पक्ष चाहता कि सच्चाई निकल कर सामने ना आए, और दूसरा पक्ष चाहता कि सच्चाई निकल कर देश और दुनिया के सामने आए कि किस तरह आक्रांताओं ने मंदिरों को ढा करके उसमें मस्जिद का निर्माण कराया। तो ये सारी चीजें दोनों पक्षों के बीच, और इंतजामिया कमेटी चाहती है कि ये मामला किसी तरह लेंथी हो, लंबा चले। हिंदू पक्ष चाहता है कि इसकी सच्चाई जितनी जल्दी हो सामने आए, तो दोनों पक्षों में। लेकिन आज ये इंतजामिया कमेटी को बड़ा झटका है और हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है कि एसआई सर्वे को अनुमति कोर्ट ने दे दी है। रामेंद्र, एक सवाल मुझे आपसे और करना है, मैं आपका वापस आऊंगी, लेकिन पहले हम सुनवाते हैं कि जो विष्णु शंकर जैन है जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, जिन्हें हम सुन पा रहे थे, उन्होंने आखिरकार जो कोर्ट में आज हुआ है उसको मुतल्लिक जो कहा है, एक बार अपने दर्शकों को पहले वो सुनवाते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजर्नमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पाया। तो हमने सुना कि जिस तरह से जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो याचिका में दलील मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई थी उसको सिरे से खारिज किया गया है, क्योंकि लगातार वो ये बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है मूल संरचना को, जो कि नहीं होने वाली। तो अंगदान दिवस है, जैसा कि हमने आपको बताया, इस पर स्वास्थ्य मंत्री अपना संबोधन दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं दुनिया के साथ कोविड के दरमियान बात करता था, मीटिंग करता था, उसमें डेवलप्ड कंट्री भी होते थे, अफ्रीकन कंट्रीज भी होते थे, CIS कंट्रीज भी होते थे, और उस वक्त जब बात होती थी तो कहते थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है, लॉकडाउन में एजिटेशन हो रहा है और देश बहुत दिक्कत में था। वहाँ हेल्थ एक प्रोफेशन था। दोस्तों, ये देश के लिए हेल्थ एक सेवा है, ये प्रोफेशन नहीं है। दूसरे को मदद करना ये हमारा स्वभाव है, और इसलिए यहाँ हमने ये भी देखा कई डॉक्टर ने अपना प्राण गंवा दिया, कई नर्स ने, पैरामेडिक स्टाफ ने अपनी ड्यूटी देते हुए अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन अपना दायित्व से पीछे नहीं हटे और देश को बचा लिया। ये हमारा संस्कार है, हमारा ये भी संस्कार है। दोस्तों, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या। इस देश में गरीब लोग भी हैं, जो एक दिन की कमाई करके एक दिन खाने वाले लोगों की संख्या भी है, महीने की कमाई करके महीने भर का चलने वाले लोग भी है, 6 महीने का जिसके पास सुविधा हो ऐसे लोग भी है, और उसकी संख्या बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में ये देश की विविधता को देखो, ये देश के परोपकार भाव को देखो। 1.5 महीने तक लॉकडाउन था, सरकार ने अपनी ओर से हो सका इतना सरकार ने किया, कॉरपोरेट सेक्टर से हो सके इतना कॉरपोरेट सेक्टर ने किया, एनजीओ ने जितना सहयोग हो सके इतना एनजीओ ने सहयोग किया, लेकिन हमने भी
देश के हर नागरिक ने, हर फैमिली ने अपने घर के नज़दीक कोई भूखे नहीं सोए है ना, उसका ख्याल भी हमने रखा ताकि देश कोविड के सामने अच्छी तरह से लड़ पाया। इस संस्कार को निर्वहन करने वाले लोग हम हैं। इस संस्कार का निर्वहन जब हम कर रहे हैं, तब हमारे देश में दूसरे लोगों को जीवन देने के लिए हम आगे ना आए, ऐसा नहीं होगा। मेरा मानना है या तो कुछ रूल्स रेगुलेशन या गवर्नमेंट के एफर्ट में कुछ कमी होगी, या तो हम इतना पब्लिक अवेयरनेस नहीं कर पाए होंगे, या तो कोई ना कोई ऐसा रीजन है जो हम सब लोगों को साथ में बैठ के उसके पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसको आइडेंटिफाई करना है क्या कमी है, ताकि देश की भावना इतनी मजबूत होने के बावजूद भी ऑर्गन डोनेशन की रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसा अवसर है, हम व्यक्ति चाहे कि मुझे हजारों साल तक या तो मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहना है, नहीं रह सकते हैं। कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, उसकी सुवास रहती है कई बार, उसका नाम रहता है कई बार, बट ये स्वयं व्यक्ति दुनिया को नहीं देखते हैं, नहीं समझ सकते हैं, या तो दुनिया को भली भांति अनुभव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कितना बड़ा अवसर है, आप सोच सकते हो। व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अपनी आंख से देखना चाहते हैं, आपकी आंख का डोनेशन दे दो, आपकी आई को डोनेट कर दो, आप नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी आंख से जिसको आपने डोनेट किया है वो व्यक्ति दुनिया को देखते रहेंगे। दोस्तों, इससे बड़ा अवसर कौन हो सकता है। आप दूसरे के हृदय में जाके दबकते रहेंगे, आप कभी नहीं दबकेंगे, लेकिन आपने आपका हार्ट का डोनेशन कर दिया, हार्ट डोनेट कर दिया, दूसरे व्यक्ति के शरीर में आप दबकते रहेंगे। आप केवल दबकेंगे नहीं, उसको जिंदा रखेंगे। आप केवल उसको जिंदा रख रहे हैं, उसका मतलब यह है कि व्यक्ति के परिवार को आप बहुत बड़ी सौगात दे रहे हो। दोस्तों, उससे बड़ा अवसर कौन हो सकता है। और इसलिए आने वाले दिनों में हमें हमारा परोपकार भाव को उजागर करने के लिए प्रयास करना है। हमें दूसरे के द्वारा जिंदा रहना है, हमें दूसरे के दिल में धड़कन लाना है। हम नए होने के बावजूद भी हम हमारी आंखों से दुनिया को हमें देखना है। दोस्तों, ये करने के लिए सरकार की ओर से तो प्रयास हो रहा है। पिछले कई महीनों से मैं लगातार इस विषय के पीछे लगा हूं। हमने तय किया, एक एक विषय आइडेंटिफाई करके क्या करने की आवश्यकता है। पहले पोर्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेट बाय स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑर्गन को ट्रांसफर करना था, दिक्कत थी, उसको पोर्टेबिलिटी दे दिया है। 65 एज की लिमिटेशन थी, उसको रिमूव कर दिया है। आज ऑर्गन डोनेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हम क्यों न व्यापक तौर पर सारे देश में एक अवेयरनेस का अभियान चलाए। हम प्रयास करें, एक बार ये पोर्टल पर जाके देखिए किसने प्रयास किया, उसका भी उल्लेख हो। इंडिविजुअल व्यक्ति आके जाके स्वयं मैं ऑर्गन डोनेट। तो अंगदान दिवस पर आप स्वास्थ्य मंत्री का संबोधन सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने जो पहल की है खासतौर पर अंगदान के क्षेत्र में वो सराहनीय है और इसीलिए लोगों को आगे आकर अंगदान करना चाहिए। वहीं देश के किसानों की सहायता के लिए एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की ज़रूरतों को उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई थी। देश में अब तक 1,25,000 केंद्रों की शुरुआत हो चुकी है, जिसका फ़ायदा देश के किसानों को मिल रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम ना केवल किसान को अपने किसानी के लिए ज़रूरी इनपुट्स दें, लेकिन किसान के साथ सीधा संवाद कैसे बने, यानी कि किसान के साथ संवाद बनाने के लिए किसान को अपने किसानी के लिए ज़रूरी एग्री इनपुट्स उपलब्ध करने के लिए
किसान को भारत सरकार की सेवाओं यानी कि भारत सरकार की सहाय उसका लाभ कैसे मिले सरलता से, उसके लिए किसान के साथ इंटरेक्शन करके किसान को एजुकेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म रूरल गांव तक, ब्लॉक तक और डिस्ट्रिक्ट तक कैसे सुदृढ़ करें, उस उद्देश्य के साथ एक किसान समृद्धि केंद्र प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इन किसान केंद्रों पर किसानों की हर प्रकार की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। एक छत के नीचे किसान को फार्म इक्विपमेंट मिलेगा, किसान को सीड मिलेगा, किसान को टेस्टिंग फैसिलिटी मिलेगी यानी कि लेबोरेटरी मिलेगी, किसान को फर्टिलाइज़र मिलेगा, किसान को अपने शिकायत का रिड्रेसल होगा यानी कि ग्रीवेंस का रिड्रेसल होगा, किसान को एक ही छत के नीचे सरकार की कोई सहाय योजना उसका लाभ के लिए फॉर्म फिलिंग करना है तो उसकी फैसिलिटी मिल जाएगी जी। ये दृष्टि से किसान समृद्धि केंद्र किसानों के भविष्य को बदलने का काम करेगा। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश अगले 3 साल में यूरिया के उत्पादन के मोर्चे पर आत्मनिर्भर हो जाएगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने वाला कंट्री इंडिया है जी, भारत है, हम है। तो आने वाले दिनों में हमने तय किया है कि 2025-26 तक हम आज देश में 280 से 285 लाख मैट्रिक टन यूरिया बनाने की हमारी क्षमता है जी, लेकिन हमारा कंजप्शन 350 लाख मैट्रिक टन है। तो 60-70 लाख मैट्रिक टन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो आने वाले 3 साल के लिए हमने प्लानिंग किया है कि हम यूरिया की जगह पे नैनो यूरिया का प्रचलन करेंगे, हम सल्फर कोटेड यूरिया यानी कि गोल्ड यूरिया का उपयोग करेंगे, हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। आज शाम 6:30 बजे आप ये पूरा साक्षात्कार डीडी न्यूज़ पर देख सकते हैं। और फिलहाल न्यूज़ 18 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अबे देख अरे बेटा बच के You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना? बच्चों के भविष्य के लिए आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें नेशनल फैमिली प्लानिंग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800116555 पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री का एनडीए सांसदों के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री बिहार के एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री 31 जुलाई से ही एनडीए सांसदों के समूहों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल यूपी के काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण के राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी के सांसदों के साथ भी बैठक की थी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इन बैठकों को काफ़ी अहम माना जा रहा है। सरकार ने कहा कि साल 2022-23 में 3,86,000 से अधिक छात्रों ने माध्यमिक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकल्प चुना। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका और उनके महत्व को मान्यता दी गई। उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लगभग 12,000 छात्रों ने एआई को चुना। उन्होंने कहा कि एआई को 8वीं कक्षा में 12 घंटे के मॉड्यूल के रूप में और 9वीं से 12वीं कक्षा के कौशल विषय के रूप में
पेश किया। खबर हरियाणा से, जहां नूंह में 2 समूहों के बीच झड़प के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। राज्य सरकार की ओर से नूंह और आसपास के जिलों में शांति बहाली की प्रक्रिया लगातार चल रही है। हालात यहां नियंत्रण में हैं। इस बीच सरकार ने शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूंह, फरीदाबाद, पलवल जिले के अलावा गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी, मानेसर उपमंडलों में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी। सोशल मीडिया पर पुलिस की खास नजर है। भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी 21 जुलाई से 31 जुलाई तक हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्कैन करेगी। अगर किसी ने कुछ भी भड़काऊ पोस्ट किया तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के असर के कारण ओडिशा के कई भागों में हुई भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। राज्य में 2 दिन लगातार हुई बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं, जबकि पानी के तेज बहाव के कारण मयूरभंज, कंधमाल, बौद्ध, देवगढ़ और क्योंझार जिले के कई गांवों से संपर्क टूट गया। प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकार ने पीने के पानी और सूखे और तैयार भोजन उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए ओडिशा आपदा अर्धसैनिक बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बलों को बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए कई जिलों में भेज दिया गया। इस बीच ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त ने कहा कि आज कटक जिले में महानदी से लगभग 8 लाख क्यूसेक बाढ़ का पानी प्रभावित होने का अंदेशा जताया गया है। उन्होंने अंगुल, नयागढ़, कटक, खोर्दा, पुरी, जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा के जिला अधिकारियों से निचले क्षेत्रों और तटबंधों में सभी आवश्यक प्रबंध करने के लिए कहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी ओडिशा के जिलों में अगले कुछ घंटों तक भारी वर्षा की संभावना है। तटीय जिलों में मध्यम बारिश होगी। सुंदरगढ़, संबलपुर समेत कई जिलों में भारी से बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है। ज़्यादा रेनफॉल का चांसेस सुंदरगढ़, सोनपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरागढ़ इसमें है। इसका साथ हमारा बोलांगीर, बौद्ध, अंगुल, देवगढ़, केओंझर, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारा रेड वार्निंग्स है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में भी ऑरेंज है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में भी रेन हमारा कंटिन्यू करेगा। धेनकेनाल, कंधामाल, कालाहांडी और नोआपाड़ा इसमें भी रेनफॉल हैवी टू वेरी हैवी होने का चांसेस है। और एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर, नयागढ़, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालासोर इसमें हैवी रेनफॉल 1-2 जगह में हो सकता है। इस तरह से अभी वार्निंग है। मेनली हमारा वेस्टर्न उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में ही ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स तक। ओडिशा के तमाम इलाकों में मानसून की तेज़ बारिश हो रही है और अगले कुछ ही घंटों में ऐसे हालात रहने के आसार हैं। मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर सड़क संपर्क टूट गया। एक तस्वीर ऐसी सामने आई जो बौद्ध इलाके की है। यहाँ नेशनल हाईवे 57 पर तालाबों का पानी आ गया, जिसकी वजह से मछलियाँ सड़क पर तैर रही हैं और आसपास के लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। उत्तराखंड से लगातार मलबा गिरने और सड़कें अवरुद्ध होने की खबर आ रही है। आज बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग और छिनका में पहाड़ी से मलबा आने की वजह से सड़क अवरुद्ध हो गई। घटना के बारे में चमोली पुलिस ने जानकारी दी है। फिलहाल मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां मौसम विभाग द्वारा 4 जिलों उमरिया, कटनी, डिंडौरी, जबलपुर में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया। बंगाल की खाड़ी के आसपास हवा के कम दबाव की वजह से मध्य प्रदेश में अत्यधिक बारिश की स्थिति बन रही है। यहां 200 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। वहीं अनूपपुर, शहडोल, विदिशा, रायसेन, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, छतरपुर, नर्मदापुरम, बैतूल सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कल प्रदेश में मंडला जिले में सर्वाधिक बारिश हुई। इस बीच राजधानी भोपाल, रीवा और जबलपुर में छिटपुट बारिश हो रही है। और हमारे संवाददाता दीपक जैन इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, जो तमाम 4 जिले उमरिया, कटनी, डिंडोरी और जबलपुर जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया, इस वक्त वहां पर किस तरह की स्थिति है?
बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से इन 4 जिलों की बात की जाए तो जबलपुर से जो खबरें आ रही हैं लगभग 111 मिलीमीटर बारिश जो है वो आज सुबह तक दर्ज की गई है। यानी कि अगर माना जाए तो जिस तरीके का रेड अलर्ट जो जारी किया गया था उसका प्रभाव पूरी तरीके से इन जिलों में दिख रहा है। विशेष तौर पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से हैं यहाँ पर भारी से भारी बारिश जो है उसकी संभावना जताई गई है। लगभग 18 जिले ऐसे हैं जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 24 जिले ऐसे हैं जहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अगर ग्वालियर चंबल संभाग को छोड़ दें तो वहाँ कुछ कम बारिश है, लेकिन बाकी पूरा मध्य प्रदेश जो है उसमें अब तक 10% से ज़्यादा बारिश जो है वो इस मानसून सीजन में दर्ज की जा चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से अलर्ट पर रखी हुई है सरकार। जिस तरीके से सभी जगहों पर आपदा प्रबंधन केंद्र जो है उनको अलर्ट पर रखा गया है, नगर प्रशासन जो है उनको अलर्ट पर रखा गया है, किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति ना बने इसको लेकर सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मॉनिटरिंग की इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने देखा कि किस तरीके से जिलों में हो या जिलों के अंदर जो क्षेत्र हैं, तहसीलें हैं, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। कहाँ अगर कहीं भी ऐसी जल भराव की स्थिति होती है, निचले इलाके हैं जो हैं उनको भी खाली करा लिया गया है और जो शेल्टर्स बनाए गए हैं वहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है जिससे कि किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति ना बने। साथ ही अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों को भी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट किया गया है कि आप निचले इलाकों में हैं तो ऊंचे इलाकों में चले जाएं। खास तौर पर अगर कोई काम ना हो तो भारी बारिश के समय पे घरों से बाहर ना निकलें। जो तमाम शेल्टर होम्स है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जहां पर लोगों को रखा गया है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था राज्य प्रशासन द्वारा दी जा रही है लोगों की सहूलियत से जुड़ी हुई? आंचल, जिस तरीके से पूरे प्रशासन का हम देख रहे थे कि मानसून के आने से पहले ही अलर्ट पर था और इसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी, चाहे शुद्ध पानी की व्यवस्था हो पीने की या भोजन व्यवस्था की। खास तौर पर जो सूखा भोजन है या जो रेडी टू ईट भोजन है उसकी व्यवस्थाएं सभी जगहों पर कराई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया था जिससे कि अगर वर्षा जनित कोई भी बीमारी अगर होती है तो उससे लोगों को बचाया जा सके। तो इस तरीके से अगर देखें तो पूरा प्रशासन तो अलर्ट है ही, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ को भी फुल अलर्ट पर यहाँ पर रखा गया है। और साथ ही स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जो रेड अलर्ट्स वाले जिले हैं वहां पर स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है उन जगहों पर छुट्टियां जो है वो घोषित हैं। इसके अलावा अन्य जो जिले हैं वहां पर प्रशासन नजर बनाए हुए है कि अगर भारी बारिश का संभावना आती है तो ऐसे में स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी जाए। साथ ही जो यातायात है उसको लेकर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की जा रही है। अगर गाँवों का जिलों से कोई संपर्क अगर टूटता है तो तुरंत उसको मार्ग को प्रशस्त किया जाए। इस तरीके की भी व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं। चलिए, आप नज़र बनाए रखिएगा दीपक, हम आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। किसान के साथ इंटरेक्शन करके किसान को एजुकेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म किसान समृद्धि केंद्र प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। किसान को एक ही छत के नीचे सरकार की कोई सहाय योजना, उसका लाभ के लिए फॉर्म फिलिंग करना है तो उसकी फैसिलिटी मिल जाएगी। ये दृष्टि से किसान समृद्धि केंद्र किसानों के भविष्य को बदलने का काम करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने वाला कंट्री इंडिया है। तो आने वाले 3 साल के लिए हमने प्लानिंग किया है कि हम यूरिया की जगह पे नैनो यूरिया का प्रचलन करेंगे, हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और ये खबर जो है वो दवा कंपनियों के लिए है। केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्रों की दवा कंपनियों के लिए शेड्यूल एम जो है उसके प्रावधानों को लागू करना अब अनिवार्य कर दिया।
6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर सभी 8,500 दवा कंपनियों को इन प्रावधानों को लागू करना होगा। सरकार ने पिछले दिनों शेड्यूल एम के तहत जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को विश्व स्वास्थ्य संगठन के जीएमपी के अनुरूप बनाते हुए सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया था। इसका मकसद दवा निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 10,500 दवा कंपनियां हैं, जिनमें से 8,500 एमएसएमई क्षेत्र की हैं। कुल कंपनियों में से 2,000 के पास ही जीएमपी प्रमाणन है और वो शेड्यूल एम के तहत आती हैं, जबकि बाकी दवा कंपनियों ने अभी तक इन प्रावधानों को लागू नहीं किया। अब नए आदेश में ये कहा गया कि जिन दवा कंपनियों का सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें 1 साल के भीतर शेड्यूल एम का क्रियान्वयन करना होगा और जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, उन्हें 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि 6 महीने के बाद प्रगति की समीक्षा होगी और उसके बाद ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। दरअसल शेड्यूल एम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का शेड्यूल एम का एक हिस्सा है। इसमें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के निर्माण कार्य के लिए अनिवार्य शर्तें लागू की गईं। इसके तहत दवा की गुणवत्ता निर्माता की एकमात्र जिम्मेदारी है। किसी भी तरह के उल्लंघन करने पर सरकार कार्रवाई भी कर सकती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर किसी भारतीय नागरिक की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव को स्वदेश लाने में परिजनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तमाम परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ई केयर पोर्टल की शुरुआत कर रही है। यह आज लॉन्च होगा। इस पोर्टल के आने से विदेश से डेड बॉडी और अस्थियां लाना अब आसान होगा। इसके लिए दिल्ली स्थित जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसे भारत के लिए नोडल एयरपोर्ट बनाया गया। खास बात यह है कि परिवार वालों को कोई आवेदन नहीं देना होगा। एयरलाइन को यह आवेदन देना होगा कि वो किस एयरपोर्ट पर डेड बॉडी लाना चाहते हैं और एक ही विंडो से मंजूरी मिलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट से देश के दूसरे एयरपोर्ट को निर्देश जाएगा डेड बॉडी आपके किस एयरपोर्ट पर आ रही है। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया। कोई भी एनजीओ, एयरलाइन और परिवार का सदस्य आवेदन कर सकता है। 4 दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिसमें डेथ सर्टिफिकेट, शव को सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिन रसायनों का लेप लगाया गया है उसका प्रमाण पत्र, भारतीय दूतावास या फिर वाणिज्य दूतावास से एनओसी, मृतक का रद्द पासपोर्ट। शव से संबंधित सभी जानकारियां व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस के जरिए सभी पक्षों को भेजी जाएंगी। इसके लिए दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट 24 घंटे काम करेगा। बात अमरनाथ यात्रा की, जिसको लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। श्रद्धालुओं का नया जत्था आज पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। यात्रा का समापन 31 अगस्त को। और अब बात हमारे नए सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं भी जो विलुप्त हो रही नमदा कला है उसका उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसे में ये महिला सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बन रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। कश्मीर की लुप्त हो रही नमदा कला को पुनर्जीवित करने में घाटी की महिलाओं का योगदान भी सराहनीय है, जो कड़ी मेहनत से विलुप्त हो रही इस कला का प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं। 11वीं शताब्दी की कला को बचाने के लिए केंद्र के विशेष पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में कारीगरों के प्रशिक्षण के बाद ये बदलाव आया है। यहाँ 2 फायदे हैं। एक फायदा ये है कि इनको जाके कंप्लीट जब ट्रेनिंग होगी तो इनको हम एक कार्ड देते हैं, समझो वो एक किस्म का सर्टिफिकेट होता है कि ये इस काम में महारत रखते हैं। तो फिर हम इसको मतलब अगर ये लोन चाहे तो लोन भी मिल सकता है इसको, और अगर ये ग्रुप पूरे ग्रुप का मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो भी हो सकता है और उसका भी लोन मिलेगा। और आगे जाके इनको गवर्नमेंट ये जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा इनको मतलब बेचने में भी मदद करेगा। नमदा प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के 6 जिलों के 2000 से ज्यादा कारीगर इस कला में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। नमदा के पुनर्जीवन से कश्मीर में
खास तौर पर लड़कियों के बीच आशा का संचार हुआ है, क्योंकि इसने स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। किसी के डिपेंड नहीं हो सकते किसी पे, हम अपने आप कुछ कर सकते हैं। और दूसरा फायदा, हमें यहाँ पे कुछ पैसे भी मिलते हैं जिनसे हम अपने आप मतलब अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उनको यूज़ कर सकते हैं। हम आगे जाके अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं इस पे। यहाँ पे जो हम पैसे मिलते हैं बहुत खुश है उसमें, लेकिन हम आगे जाके इसको बढ़ाना चाहते हैं। हम ये घर में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहले तो ये बहुत ही खतरनाक था क्योंकि ये मर्दों की काम थी, और इसमें जब मंडाई करते हैं ना, इनको थोड़ा यहाँ पे लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सख्त था हमारे लिए, लेकिन अब हम सीख गए, बहुत ही अच्छा काम है। नमदा कला ने किन्हीं वजहों से घर बैठी और पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं को भी नया हौसला दिया है। डिपार्टमेंट की तरफ से जब यहाँ इस एरिया में भेजा गया सेंटर, तब से हमने सीखा कि कैसे नमदा बनाते हैं, कैसे इस पे फिर आरी का काम किया जाता है। हम ये सीखने के बाद घर में भी कर सकते हैं, अपना ये जॉब कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने सीखा वैसे हम चाहते हैं कि और भी लड़कियां सीखें। डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने सबसे पहले ये काम लिया कि जो लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे उनको सिखाया जाए पहले काम। दूसरा तो ये है कि इससे हमें ये इनिशिएटिव मिलेगा या इससे ये रोजगार मिलेगा, हम खुद भी कर सकते हैं। चलो फिर हम यहाँ आए, 20 लड़कियाँ हम आए यहाँ। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा है ये 1 साल में। अब हम घर में भी ये काम कर सकते हैं, अब हम इससे अपना रोजगार जो है बना सकते। नमदा प्रोजेक्ट नमदा शिल्प उत्पादन में शामिल लाभार्थियों के साथ एक उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कश्मीर में नमदा शिल्प से जुड़ी समृद्ध विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करने में योगदान दे रहा है। तो नमदा एक बेहद ही खूबसूरत पारंपरिक हस्तशिल्प है। बड़ी मेहनत के साथ जो इसका बेस क्लॉथ है वो बनाया जाता है, और उसके बाद इस तरह से कढ़ाई है वो की जाती है। अलग अलग आकार में ये बनाया जाता है। यहाँ पर जो ग्रेजुएट हैं कई लड़कियाँ, उनका ये कहना है कि वो सीखने के बाद जो और लड़कियाँ उनको सिखाएंगी, वो इस तरह के सेंटर खोल सकते हैं और एक बड़ा योगदान इस पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ाने में दे सकते हैं। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम यहाँ पर साबित हो रहा है। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि दृष्टिबाधित लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं है, इन्हें रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, साथ ही उच्च शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। और अब रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला मैच त्रिनिदाद में होना है। टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में, जबकि वेस्टइंडीज टीम की अगुवाई रोवमैन पॉवेल करेंगे। दोनों टीमें रोचक भिड़ंत के लिए तैयार। मैन इन ब्लू ने हाल ही में मेजबान टीम को 2-1 से हराकर वनडे सीरीज पर कब्जा किया। T20 में भी टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ मजबूत स्थिति में। वेस्टइंडीज और भारत के बीच अब तक 25 T20 मुकाबलों में आमना सामना हो चुका है, जहां टीम इंडिया ने 17 मैच जीते, जबकि वेस्टइंडीज ने सिर्फ 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की। हालांकि एक मैच का निर्णय नहीं हो पाया। बात अब हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज चेन्नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज करेगी। भारतीय टीम को टूर्नामेंट की सर्वोच्च रैंकिंग हासिल है, ऐसे में टीम के हौसले बुलंद हैं। वहीं चीन की बात करें तो टीम के सामने इस टूर्नामेंट में अपने निराशाजनक इतिहास को बदलने की चुनौती है। देखिए रिपोर्ट। मैदान पर पसीना बहाती और अपनी हर एक कमी को तलाश कर दूर करती यह तस्वीर भारतीय हॉकी टीम की है, जो चीन के खिलाफ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अपने अभियान का आगाज करेगी। भारतीय हॉकी टीम ने हाल ही में स्पेन का दौरा किया, जहां टीम तीसरे स्थान पर रही। हरमनप्रीत सिंह की सेना को इस टूर्नामेंट की अहमियत मालूम है। टीम इंडिया के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के रिकॉर्ड पर गौर करें तो टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में 37 मैच खेले हैं, जिसमें 24 में जीत दर्ज की है। 8 मैच ड्रॉ रहे तो वहीं 5 में हार मिली है। जैसे हमारा स्पेन में माइंडसेट था, क्योंकि वहाँ पर टॉप की 3 टीम और स्पेन के साथ हमारा मैच था, वही हमारा माइंडसेट सेम एशियन चैंपियन ट्रॉफी में है। आउटकम इन द डी, और गेम का टेम्पो हमने कैसे कंट्रोल करना है, गेम का जो स्विच है वो कैसे हमने ऑन करना है, और स्टार्टिंग के पहले जो टाइम होता है स्टार्टिंग का, जो वो हमने एक स्टार्ट स्ट्रॉन्ग करना है।
उधर चीन की बात करें तो टीम ने 2018 के बाद से कोई भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेला है। हालांकि इस टीम के पास वेइबो ओ के रूप में बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिनके नाम 108 मैचों का अनुभव है। चीन इस टूर्नामेंट की सबसे कम रैंकिंग की टीम है। चीन के टूर्नामेंट के रिकॉर्ड पर गौर करें तो इस टीम ने 24 मैच खेले हैं, जिसमें 8 में जीत दर्ज की है। वहीं टीम को 15 हार मिली है। यकीनी तौर पर चीन इस आंकड़े को बदलना चाहेगा, लेकिन टीम इंडिया की मजबूत रक्षात्मक पंक्ति के आगे इसे बदलना इस टीम के लिए कतई आसान नहीं होगा। इस टूर्नामेंट को लेकर के भारतीय टीम के हौसले काफी बुलंद हैं। भारत का चीन के खिलाफ जीत के 2 रास्ते और 2 कारण दिखते हैं। पहला यह है कि भारतीय टीम के हौसले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद हैं। लगातार टीम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलती आ रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन की बात करें तो चीन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से दूर रहा है, जिसका खामियाजा उसको रैंकिंग में भी उठाना पड़ा है और उसके खेल पर भी पड़ा है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प रहेगा कि भारत जो है जो अपना अभियान का आगाज चीन के खिलाफ कर रहा है, उसमें जीत तो तय करता है, लेकिन जीत का ये अंतर है वो किस तरह का रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात मायने रखेगी। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, चेन्नई। और भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को उम्मीद है कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले हुआ स्पेन का दौरा टीम इंडिया के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में किफायती साबित होगा। उनसे खास बात की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस टूर्नामेंट को लेकर के टीम की तैयारी किस तरह की है। हार्दिक, सबसे पहला सवाल, अभी हाल में ही भारतीय टीम ने स्पेन का दौरा किया है और अब चेन्नई में हालात बदल गए हैं, लेकिन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो बहुत शानदार है। फिर भी कितनी बड़ी चुनौती है इस टूर्नामेंट में? आई थिंक सर हमारी एशियन गेम्स की तैयारी चल रही है और हम कोई भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहते। जैसे हमारा स्पेन में माइंडसेट था, क्योंकि वहाँ पर टॉप की 3 टीम और स्पेन के साथ हमारा मैच था, वही हमारा माइंडसेट सेम एशियन चैंपियन ट्रॉफी में है। हार्दिक, किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा वर्कआउट किया गया है? आई थिंक कि आउटकम इन द डी और गेम का टेम्पो हमने कैसे कंट्रोल करना है, गेम का जो स्विच है वो कैसे हमने ऑन करना है, और स्टार्टिंग के पहले जो टाइम होता है स्टार्टिंग का जो, वो हमने एक स्टार्ट स्ट्रॉन्ग करना है। हार्दिक, एज अ प्लेयर, क्योंकि बैक टू बैक टूर्नामेंट खेलना भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा स्टैमिना लगती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है डेट के बीच में, चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू हो गई और उससे पहले स्पेन का दौरा था, कैसे देखते हैं इसको? आई थिंक सर ये हमारी जॉब ही है कि हम 365 डेज ट्रेनिंग करते हैं बेंगलोर में, तो हम इसी मतलब फेस के लिए करते हैं कि जो मतलब हम बैक टू बैक टूर्नामेंट खेले हुए हमारी जॉब है और एक देश के लिए हम खेल रहे हैं। तो आई थिंक कि इसमें हमारे को मतलब कोई मतलब ऐसा कुछ कोई जैसे आप बोल सकते हो कि चुनौती वाला कोई काम नहीं है, ये हमारी जॉब है और हम सभी तैयार हैं खेलने के लिए। हार्दिक, इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी टीम लग रही है आपको? आई थिंक सर कि सारी टीमें ही अच्छी हैं, आप देख सकते हैं चाइना अच्छी है, जापान, कोरिया, मलेशिया अच्छी है, तो हम कोई भी टीम को हम हल्के में नहीं लेना चाहते। एक ही हम माइंडसेट के साथ खेलना चाहते हैं और कोई भी टीम है 1 गेम एट अ टाइम। हार्दिक, सबसे बड़ा मुकाबला 9 अगस्त को रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? कि हर कहना चाहिए हॉकी प्रेमी की जो नज़र होगी वो इस मुकाबले पे होगी। आई थिंक सर कि फैंस के लिए होगा सर कि पाकिस्तान टीम है कि थोड़ा बहुत आपको पता है जो चलता है, बट आई गेस कि जैसे मैंने अभी बोला है कि 1 गेम एट अ टाइम, कि हम पाकिस्तान की गेम को एक नॉर्मल गेम जैसे खेलेंगे और जो हमारे इमोशंस हैं उसको हम साइड करके जो हमारी टीम की स्ट्रेटेजी होगी उसके साथ हम खेलेंगे। आखिरी सवाल, कोच क्रेग फुलटन के प्रशिक्षण में कितना आगे बढ़ते देख रहे हैं आप भारतीय हॉकी को? आई थिंक सर कि इम्प्रूवमेंट हमारी पिछले 2 महीने से आप देखे जाए तो बहुत अच्छी चल रही है। स्ट्रेटजी वाइज अभी हमारा ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, टैक्टिकली बहुत अच्छा चल रहा है और आई गेस कि सर ये टूर्नामेंट में आपको देखने को मिल जाएगा कि हमने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। आपने उनसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह, जिनका कहना है कि इस टूर्नामेंट को लेकर काफी वो भरोसेमंद दिख रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि किसी भी टीम को हल्के में लेना वो कतई नहीं चाहेंगे, ना ही उनकी टीम चाहेगी कि वो किसी भी टीम को वो हल्के में ले। उन्हें ये भरोसा है कि ये जो स्पेन का दौरा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्पफुल साबित होगा और इसके अच्छे नतीजे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, चेन्नई। और चेन्नई में ही मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने भारतीय हॉकी टीम की तैयारी का जायजा लिया। आइए देखते हैं।
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज टीम इंडिया जो है वो चाइना के खिलाफ करेगी और चाइना के खिलाफ टीम का रिकॉर्ड जो है वो हमेशा से दमदार रहा है, लेकिन बावजूद इसके टीम कोई भी कमी जो है वो अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि टीम जो है वो अपनी तैयारी को भली भांति तरीके से सामने रख रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से टीम जो है वो परफॉर्मेंस अपने आप को दे रही है, अपना परफॉर्मेंस लगातार इंडियन कंडीशंस के अंदर अपने आप को साबित करने के लिए लगी हुई है, क्योंकि मैच से पहले हरमनप्रीत सिंह ने इस बात को पर जोर दिया था काफ़ी कि स्पेन के बाद भारत में आकर के खेलना एक चुनौती रहेगी, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस डिफरेंट थी। और अब ये जो जीटी पेरिस जो कहना चाहिए जो टर्फ है वो अपने आप में एक नया एक चैलेंज भी है भारतीय टीम के लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ज़ीरो कार्बन फ्री जो है टर्फ है और यही टर्फ जो है वो पेरिस ओलंपिक के लिए भी यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे में जो फ्रिक्शन है वो बहुत अच्छी हो जाती है इस टर्फ पे आकर के, और इसकी जो प्रैक्टिस है वो भारतीय टीम कर रही है। भारतीय टीम के अगर सफ़र की बात करें तो टीम ने काफ़ी अच्छे तरीके से खुद को सामने रखा है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में टीम जो है वो 3 बार इसका खिताब जो है वो जीत चुकी है और पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा कहना चाहिए सफल टीम जो है वो भारत है। लेकिन पिछला एडिशन हमने देखा था जब भारतीय टीम को निराशा हाथ लगी थी और टीम को कहना चाहिए कि टीम जो है वो फाइनल में भी जगह नहीं बना पाई थी। तो ऐसे में इस बार टीम जो है वो कोशिश यही करेगी कि वो अपनी इस तैयारी को पूरी तरह से पूर्ण रखे। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात है कि इंजरी से खुद को बचा कर रखे, क्योंकि टीम के पास कई अहम खिलाड़ी हैं जैसे कि दिलीप तिर्की हैं, इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं, उप कप्तान हार्दिक सिंह हैं, जो कि अपने आप को लगातार साबित करते आए हैं। तो ऐसे में ये टूर्नामेंट टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ ही साथ टीम को इस बात का भी ध्यान रखना है कि टीम इस टूर्नामेंट में अच्छा करे और साथ ही साथ एशियन गेम्स में भी अपनी लय को जो है वो बरकरार रखे, और सबसे ज़रूरी पार्ट है कि इंजरी से खुद को बचा कर रखे। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, चेन्नई। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।